like you may have heard of 7 years itch. This has been 12 years itch, which was itching all the time. So we came back for you all. Thank you very much. बहुत खुशी हुई, आज तक सबने इतनी इज्जत नहीं दी है. मॉम और मोनिशा के बीच में इतने सालों से फंसा हुआ था कि बोलने का कभी मौका नहीं मिला. आज बोलने का मौका मिलेगा शायद. I know Atish can churn out a story at the drop of a hat, but to put something together in this kind of tight, succinct way, it's not an easy thing to do. And Atish really has had to work at it. साराभाई का कोई भी कैरेक्टर रिप्लेसेबल है ही नहीं, पर एक था जो हमने पहली सीजन में एक बार दो बार रिप्लेस किया था. हमको राइट कास्टिंग मिल ही नहीं रही थी. Remembered me as Simple Kilawala. So we are so happy to have all of you back again with us for the rebirth of this show. Welcome to this very upper middle class open plan home of one of television's best loved and most remembered families, the Sarabhais. Of course, who doesn't remember the Sarabhais? They were one of television's most popular and well-loved show. They achieved cult status in the last 10 years in between their last hurrah and now its rebirth. Who would have thought that over a decade later, India's most iconic comedy would reappear on India's leading on-demand video platform, Hotstar? A huge thank you to Team Hotstar for answering the question that we've all been asking for the past decade. When will the Sarabhais return? Of course, I can understand that many of you must be wondering, why are we meeting at 6:30 in the evening in the middle of the week? Let me try and answer that question. Maya thought, of course, that it would be very fancy to host a high tea, segueing into cocktails. You know, it's all very befitting. The Sarabhai is very upper middle class and all. Nahi, Monisha, high tea doesn't mean कि कप ऊंचा रख के चाय पीना पड़ता है. No. Of course, Monisha decided गुरुवार ही होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का उपवास रहेगा तो पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि लोग खाना नहीं खाएंगे and फिर जलजीरा भी सर्व करने का मौका मिल जाएगा. So, which is why it's 6:30 on a Thursday evening, and thank you very much for joining us on this special occasion. Now, I would like to invite the founder of Hats Off Productions, the producer of the show of Sarabhai vs. Sarabhai. इनके बारे में जितना भी कहे कम है, but कम शब्दों में वर्ल्ड फेमस इनवालकेश्वर कवि रोशेश ने कहा है, प्रोड्यूसर तो है ही, बट एक्टिंग के लिए ही इज़ ऑलवेज रेडी. लगते हैं हमेशा टन टना टन टन. Please put your hands together for Mr. Jamnadas Majethia urf JD. Hi guys. पिछले हफ्ते तक हिंदुस्तान में सारे व्यूअर्स के मन में दो प्रश्न बड़े ज़ोरों से चल रहे थे. पहला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और दूसरा था ये साराभाई वर्सेस साराभाई वापस कब आएगा. तो दूसरे प्रश्न का जवाब अब मिलेगा और पहले का जवाब आप में से जिसने बाहुबली 2 देखी है उनको मिल गया है, तो मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं. ऐसा है कि कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, पर कुछ चीज़ें हैं जो आई वुड लाइक टू रीड इट आउट टू यू बिकॉज इट हैज़ बीन रिटन दैट वे, और उस पर मैं आपका वक्त कम लूँगा बिकॉज आई नो यू आर एंशियसली वेटिंग टू सी द कास्ट ऑफ सारा वर्सेस साराभाई 2 इन देयर रियल अवतार. Indian fans are extremists. If they don't like you, you're gone. And it's very difficult to please them again. But if they love you, they never let you go. That's what happened with Sarabhai. They never let Sarabhai go out of their mind. They kept watching episodes repeatedly. There were Sarabhai fan clubs, Facebook pages. There were Sarabhai theme parties. Do you know? People used to discuss Sarabhai theme party. आज घर पे Sarabhai theme party है, characters बन के लोग आते थे, हमको videos भेजते थे. तो this love was the prime
and main reason for us to bring it back. And हाँ, हम सबको we were also craving that we want to do this show, but we were always worried. मन में एक चिंता थी कि क्या हम ये साराभाई वर्सेस साराभाई का जो मैजिक था वो रिक्रिएट कर पाएंगे. एंड व्हेन वी ऑल डिसाइडेड कि कर पाएंगे, देन इट वाज वेरी इजी. यू हर्ड मी राइट, इट वाज रियली वेरी इजी. करना क्या था कि पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करना था, एंड वी न्यू इट that we were a great team and we'll put it the entire show the way it is supposed to be in very few days. सारे कलाकार टेक्नीशियंस ने, you won't believe, इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे कुछ वक्त के लिए करना बहुत डिफिकल्ट था. Everyone has sacrificed their opportunities जो साराभाई के आसपास उस वक्त में आती थी. शोज छोड़े हैं, फिल्म्स छोड़ी हैं, क्या क्या काम नहीं छोड़े, बिकॉज एवरीबडी कमिटेड टू दैट पीरियड फॉर साराभाई से साराभाई. टेक्नीशियंस की बातें करें तो सीनियर मोस्ट टेक्नीशियन हमारे थे ज्ञान सहाय, कैमरामैन, डीओपी, जिन्होंने उस वक्त ऐसी लुक बनाई थी कि साराभाई आज भी टाइमलेस लगता है. एंड हियर इज अगेन जॉइंड अस. ज्ञान जी प्लीज हाथ कीजिए. ज्ञान जी के साथ एक यंग एनर्जी और आज की टेक्नोलॉजी से थोड़े माहिर और थोड़े स्पीड में तेज ऐसे कैमरामैन राहुल सोनी. म्यूजिक डायरेक्टर डियो उत्तंक वोरा एंड हिज सन उर्वाक वोरा. दे क्रिएटेड सच लवली मेमोरेबल म्यूजिक पीसेस कि आज भी वो म्यूजिक पीस से लोग साराभाई का कैरेक्टर को याद करते हैं. एंड द टाइटल ट्रैक ऑफ साराभाई वर्सेस साराभाई. प्लीज गिव अ बिग हैंड टू उत्तंक वोरा. टाइटल ट्रैक की बात आती है तो हाउ कैन वी फॉरगेट उषा उत्तुप. ये जो नजर आते हैं, मैं बहुत बुरा गाता हूं पर, एंड विच वॉज पेन्ड बाय आतिश कपाड़िया. ये शो का सबसे अहम किरदार सेट था. वी हैड टू रिक्रिएट दैट लुक जो लोगों को इतना पसंद आया था पहले. We had to search for a very talented, and we found one very talented set designer, Varsha Jain, who's not here today, who's designed, just name a few things. Disney का भी play आया था, musical Beauty and the Beast, and she's recently designed Madame Tussauds in Singapore and many talk of the town events in the country. लुक की बात करते हैं तो साराभाई कॉस्ट्यूम्स, माया साराभाई के ब्लाउजेस से साड़ीज, एवरीथिंग वाज अ स्टाइल स्टेटमेंट. आई होप एंड विश अनिर्बान एंड राजेश हियर. दे हैव नॉट रीच, दे ऑन द वे. ज्वेलरी डिजाइनर मानसी एंड मनोज, एडिटर्स अशोक एंड अजय, आर दे देयर? कुछ लोग आए नहीं हैं. इन सब की बात हो गई तो चलिए कुछ कलाकारों की बात पर आते हैं. साराभाई साराभाई टेक 2 में, जैसे आप सबको पता है थोड़ा सा कि एक 7 ईयर का लीप है. टेक 2 है तो कुछ नया एडिशन होना ही था, तो एडिशन है कुछ कलाकार, कुछ किरदार, और 7 साल की लीप है तो साहिल और मोनिशा को एक बच्चा तो आना ही था. वी हैव पार्थवीर एज ऑर्नोव. प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड. वेरी टैलेंटेड चाइल्ड. बेटा वो चेयर पे बैठ जाओ, वो पहली चेयर पे बैठ जाओ. रोशेश की शादी कितनी भी मेहनत कर लो होती ही नहीं है. पिछली सीजन में देश भर में घूमे हम, उसकी शादी का प्रॉब्लम ही है, पर रुकता भी नहीं है, मांगता ही रहता है कि मुझे शादी करनी है, मेरे लिए दुल्हन ढूंढो. तो ढूंढना ही था. पूरे हिंदुस्तान से उस वक्त नहीं मिली जो लड़की, आंखें सबकी ऐसी बड़ी हो गई हैं, ऐसी एक लड़की हमको मिली है. वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस. हमें एक ऐसी ही कलाकार चाहिए थी जो इतने सीजन्ड एक्टर्स के बीच में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहकर उस किरदार को बखूबी निभा पाए. वैभवी उपाध्याय एज जास्मिन. प्लीज वेलकम वैभवी उपाध्याय एज जास्मिन.
जास्मीन को जब अब एपिसोड्स में बोलते हुए सुनेंगे, कसम से ये बात याद रखिएगा, आज एपिसोड्स देखेंगे तब पता चलेगा, आप अपनी स्कूल में फिर से वापस जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए। जास्मीन प्लीज गिव आवर बिग हैंड। रोशेश की शादी की बात आई तब 2 नए एडिशन कैरेक्टर, कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, जब आप शोरील देखेंगे तो उसमें आएंगे। हमेशा एक क्वेश्चन रहता था सीजन 2 में कि आपने किसी को रिप्लेस किया है क्या? तो हम कहते थे कि साराभाई का कोई भी कैरेक्टर रिप्लेसेबल है ही नहीं, पर एक था जो हमने पहली सीजन में 1 बार 2 बार रिप्लेस किया था। हमको राइट कास्टिंग मिल ही नहीं रही थी, और वो थी सोनिया। सोनिया यानी कि माया की बेटी। अगर माया की बेटी, माया साराभाई की बेटी में किसी को कास्ट करना है तो ऐसी ही कोई होनी चाहिए जिसमें माया के वो सारे गुण हो। एंड फॉर्चुनेटली हमने एक पायलट कर रहे थे स्टार के लिए, और हमें एक्ट्रेस से हमारी मुलाकात हुई, और मैं और आतिश ऐसे थे, तो माया छे, आ रियल लाइफ में माया छे। एंड वी टोल्ड हर कि आप तो इतने सारे शोज की लीड एक्ट्रेस रही है, पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसी जबरदस्त कास्ट और से जबरदस्त शो में काम करने की, तो वुड यू लाइक टू जॉइन अस? एंड शी इमीडिएटली से, सर आई विल गिव माय राइट हैंड टू यू फॉर दिस शो। प्लीज वेलकम gorgeous and very talented Aishwarya Sakuja, who's playing Sonia. मैं जब भी कोई फोटो खींचता है इनके बाजू में कभी खड़ा नहीं रहता हूं, हालांकि हमारी टीम में से कोई इनके बाजू में खड़ा रहना पसंद नहीं करता है। ऐश्वर्या, प्लीज कम एंड जॉइन अस। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू ऐश्वर्या सकुजा। है किसी ने कुछ पूछा है? यू गेस्ड इट राइट। हमारे बीच एक ऐसे वेटरन एक्टर है जिन्होंने पहली सीजन में हमें बहुत हंसाया, और मधु फूफा के किरदार को एक, कहते ना, ही मेड इट सो रियल। वो इतना बिलीव करते हैं, इतना 50 साल से थिएटर करते हो, इतना मानते उस किरदार में घुस जाते हैं कि अभी अभी उनको लेटली वो सुनने का प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कहते थे वो। प्लीज वेलकम अ वेरी टैलेंटेड एक्टर अरविंद वैद्या। बेशब्द केवा छे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? खोलना है? क्या खोलना है? आप बैठ जाइए। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। अब जब मधु फूफा आए हैं तो, और सोनिया आई है, फैमिली ट्री की शुरुआत हो गई है, और मधु फूफा के सबसे चहीते कलाकार है इंद्रवदन। बहुत पट्टी इन दोनों की। और जैसे कहा मैंने कि फैमिली ट्री की शुरुआत हुई है तो घर के मर्द को बुलाते हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। प्लीज वेलकम इंद्रवदन साराभाई सतीश शाह। सतीश जी, हाँ प्लीज, जो जगह आप पसंद करें आपकी। आपके बाजू में माया जी आने वाली है। सतीश जी, would you like to say a couple of words to the audience? Hello. Well, thank you very much for such a warm welcome. This is more like a, you may have heard of 7 years itch. This has been 12 years itch, which was itching all the time, so we came back for you all. Thank you very much. अब घर के मर्द आ गए हैं तो घर के बॉस को भी बुला लेते हैं। सुपर टैलेंटेड। अगेन शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, और हम ये बहुत स्पोर्टिंगली मानते हैं, सब मानते हैं सेट पे भी। वी वर शूटिंग फॉर मेकिंग ऑफ साराभाई वर्सेस साराभाई टेक 2। तो एक क्वेश्चन चल रहा था, सबको हम अकेले में पूछते थे
कि आपका इस सीरियल में फेवरेट किरदार कौन सा है? अगर आपको आपका रोल छोड़कर किसी और रोल करने का मौका मिले तो आप कौन सा रोल करना पसंद करेंगे? और यूनेनिमसली सभी ने एक ही नाम कहा, माया साराभाई। रत्ना जी, few words. Saying a few words is just so middle class, so please let me wait. Give me a chance to say much more than a few words a little later. Later, she said. Okay. Otherwise, this stage is all yours, Ratna ji. ये फैमिली कितना क्रेजी है, कितनी पागलपंती है इस फैमिली में, यू ऑल नो। तो फैमिली में एक सबको बांध के रखे, ऐसे जिम्मेदार बट यट वेरी सुलझा हुआ बेटा, पर फिर भी जबरदस्त कॉमेडी की सूझ हो। आज की जनरेशन में ऐसा एक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। गुड लुकिंग, टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड सुमित राघवन एज साहिल, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। मोनिशा के बीच में इतने सालों से फंसा हुआ था कि बोलने का कभी मौका नहीं मिला। आज बोलने का मौका मिलेगा शायद। माइक भी दिया हाथ में। हाय मॉम, हाय मॉम, हाय मॉम, हाय मॉम। ओह डैड भी बैठे हुए हैं, तो बहुत संभल कर बोलना पड़ेगा। एनीवे, हमारी फैमिली और भी पीछे वेट कर रही है, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो मैं अभी इतना ही कहूँगा कि थैंक्स लॉट, आपका जो प्यार है वो हमें फिर से खींच लाया है। तो जोरदार तालियां हो जाए साराभाई वर्सेस साराभाई टेक 2 के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जरा मैं एंट्री का ऑर्डर बदल देता हूं, बिकॉज इट्स ऑलवेज मज़ा तब आता है जब साहिल माया और मोनिशा के बीच फंसता है। मैं आपको, यानी रूपाली रियल लाइफ में भी ऑलमोस्ट मोनिशा ही है। अभी पीछे मैंने देखा तो कुछ 6 खाली बॉटल पड़ी थी पानी की, तो आई थिंक रूपाली ने अपनी भरेली छे नहीं है। अच्छा नहीं बनी मेरी मस्ती। अच्छा नहीं ली आज माया ने उसको डांट दिया है। तो लेट्स वेलकम। मैं रूपाली के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। पहले किसी को ये पता नहीं था कि रूपाली कॉमेडी कर सकती है। वो सोप्स करती थी, संजीवनी और ऐसे शोज करती थी जहाँ पे बहुत रोती थी और रुलाती थी। करेक्शन वो कॉमेडी करती थी मगर उसे पता नहीं था। हमारे सेट पे ये हमेशा होता रहता है। रूपाली, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, हम सब, ये लोग क्यों, हम सब करते हैं। बट जब रूपाली ने ये शो किया, पहले 2, 3, 4 दिन, द वे शी हैज ग्रोन एज एन एक्टर, वी ऑल आर सो हैप्पी। एंड दिस शो एंड द सेट कैन नॉट हैव फन एंड एंटरटेनमेंट एंड जॉय विदाउट रूपाली। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली। क्या ना घर पे म्युनिसिपैलिटी का पानी बचेगा। थैंक यू रूपाली, थैंक यू। प्लीज बी सीटेड देयर विथ सबको। नहीं, वो दिखाने के लिए वो नहीं। एंड you know the term mama is never loved or hated more after this person has used this term in his poems. Fortunately or unfortunately, रोशेश की कविताएं हिंदुस्तान में कुछ पॉपुलर पोएट्स की पोएम से भी ज्यादा पॉपुलर है।